إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی وفي روایت فلیس منی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نکاح کی مبارک مجلس ہے اور یہ مجلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی یہ چلی آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ان مخلوقوں میں سب سے بہتر انسانوں کی مخلوق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. یعنی تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر وہ انسانوں کی مخلوق ہے. اور زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے، جو اطوار، جو ڈھنگ ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، یہی فرق ہے انسانوں میں اور حیوانوں میں. حیوان یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے زندگی کا، اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو مراحل، جو طریقے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، ہمیں اسی کے ڈھانچے میں، اسی کے مراحل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اس دنیا میں انسان پیسہ کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے بدیسوں کا سفر کرتا ہے، دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تاکہ اس کا گھر اچھا رہے، اس کے بال بچے آرام و سکون کے ساتھ رہیں، وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے. اس کے لیے آدمی بہت ساری تگ و دو کرتا ہے، بہت ساری محنتیں اور مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے. اسی اثنا میں انسان روزی حاصل کرنے کے لیے بدیسوں میں جاتا ہے، سعودی، قطر، دبئی، ان ساری ممالک کا سفر کرتا ہے کہ تاکہ وہ اچھی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہے. 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہے. ان میں سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ. وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کی بیوی نیک ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو، جس کی عورت اچھی ہو، اپنے شوہر کی، اپنے آدمی کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، کہنا مانتی ہو، نیک ہو اس کی بیوی، وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے. دوسری چیز مرکب الحنیہ. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے پاس ایک بہترین سواری ہو، چلنے کے لیے سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، جو کچھ بھی اپنے طاقت کے مطابق ہو خرید کر کے چل رہا ہو، وہ آدمی خوش نصیب ہے. اور تیسری چیز گھر ہو اس کے پاس، بہترین گھر ہو. چوتھی چیز جار صالح، نیک پڑوسی. پہلی چیز المرأۃ الصالحات، نیک عورت ہو. دوسری مرکب الحنیہ،
चलने के लिए बेहतरीन सवारी हो, तीसरी रहने के लिए अच्छा सा मकान हो, चौथा बगल में जिसका घर हो पड़ोसी वो नेक हो, सालेह हो। ये 4 चीज़ें जिस आदमी के अंदर है, जिस आदमी के अंदर पाई जाती है, वो खुशनसीबी की अलामत है। और 4 ही चीज़ें ये बदनसीबी की अलामत है। इसका उल्टा समझ लीजिए। बदनसीबी की अलामत क्या है? बुरी औरत। जिसके घर में जिसकी औरत, जिसकी बीवी बुरी है, बदचलन है, अपने शौहर की कहना नहीं मानती है, वो आदमी बदनसीब है। कहीं से थका मादा आता है घर में, बीवी के ड्रामे शुरू हो जाते हैं, उसके कारनामे शुरू हो जाते हैं, तू में चालू हो जाती है, तो आदमी बदनसीब है। बड़े ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी बीवी अच्छी होती है, सालेह होती है। तो बदनसीबी की अलामत यह है कि जिसकी बीवी बुरी हो। दूसरी चीज़ कि जिसके पास चलने के लिए सवारी ना हो, वो आदमी बदनसीब है। अब जाना है चौराहे पर, सोच रहा है किस तरीके से जाऊं, धूप बड़ी तेज, अगर सवारी होती तो बासानी के साथ चला जाता, वो बदनसीब है वो आदमी। तीसरी चीज़, जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो, रहने के लिए घर ना हो, वो आदमी बदनसीब है। और चौथी चीज़, जिसका पड़ोसी जो है बुरा हो। घर में मैयत पड़ी है, बगल में पड़ोसी ढोलक बजा रहा है, ताशे बजा रहा है, नाच गाने बजा रहा है, ये बदनसीबी की अलामत है। इन सारी चीज़ों से हमें और आपको बचनी चाहिए। और हर आदमी को पाक रोज़ी की तलाश में, पाक रोज़ी की जस्तजू में रहनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि दुनिया की जितनी सारी पूजें हैं, सारी चीज़ें फ़ायदा उठाने की चीज़ है। इन दुनिया की सारी चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ अलमरातुस सालिहा है, नेक और सालेह बीवी है। अल्लाह की कसम, जिसके घर में जिसकी बीवी नेक है, सालेह है, फर्माबरदार है, वो बड़ा ही खुशनसीब आदमी है। इसलिए अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को दीन की बातें सिखलाएं और अपने घर को इस्लामी माहौल बनाने की कोशिश करें। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। नौजवानों को मुखातब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरस सबाब मन इस्तता मिनकुमुल बा फलयतजव्वज़। अल्लाह के नबी ने नौजवानों को हुक्म दिया कि आए नौजवानों की जमात, तुम में से जो ताकत रखता है शादी की, कुव्वते बा की, नान व नफ़का की, यानी बीवी के खर्च को पूरा करने की अगर ताकत रखता है, फलयतजव्वज़, पर चाहिए कि वो शादी करे। शादी करने के फ़वाइद क्या हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अगुज़्ज़ुल बसर, ये इंसानों की निगाहों की हिफाजत करता है। शादी से पहले ना जाने नौजवान कहाँ कहाँ निगाहें अपनी जो है निगाहों को फेरते हैं। शादी हो जाने के बाद उसकी निगाह की हिफाजत होती है, उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। और दूसरे फ़ायदे, बरकत होती है, घरों में बरकत के दहाने खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादी करने से बरकतें होती हैं। उसकी दलील, उसकी सबूत, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे कोई बिजनेस बता दीजिए, कोई काम बता दीजिए, कोई कारोबार, मैं गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी किस तरीके से चल रहा है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी तंगी हो रही है, अल्लाह के नबी कोई बिजनेस बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? उस नौजवान ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, अभी मैं शादी नहीं किया हूँ। आपने फरमाया कि आए नौजवान, जाओ सबसे पहले शादी कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत होगी। अब नबी जो हुक्म दे दे, सहाबा ना माने, सहाबा का हुक्म सराखों पर हो लिया करता था। हम और आप टाल दिया करते थे, नबी की बात को ठुकरा दिया करते थे, लेकिन सहाबा इतनी जल्दी नबी की बात को मान लिया करते थे कि नबी की होठ से निकलने से पहले ही उसको सहाबा अमल करना शुरू कर दिया करते थे। वो नौजवान गया और शादी कर लेता है। अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक वो नौजवान शादी कर लिया। 2 दिन के बाद फिर आया, अल्लाह के नबी से कहने लगा, अल्लाह के नबी आपने जब हाल पूछा तो कहने लगा, अल्लाह के नबी शादी करा के हाल पूछते हैं, बड़ी बुरी हाल है। पहले तो अकेले था, कहीं से एक टाइम का खाना वगैरह मिल जाता था, अब बीवी भी आ रही है, वो भी भूखी बैठी है, मैं भी भूखा बैठा हूँ, कहीं से रोज़ी नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नबी जल्दी कोई काम बताइए, वरना हम भी भूखे मर जाएंगे, घर में बीवी बैठी वो भी भूखी मर जाएगी। आपने फरमाया ठीक है, जाओ एक शादी और कर लो। वो नौजवान गया, दूसरी शादी कर लिया। फिर 2 दिन के बाद वो आया नबी के पास। आपने फरमाया, नौजवान क्या हाल है?
कहने लगे अल्लाह के नबी शादी करा के हाल पूछते हैं, एक बीवी में खुश था, कहीं से एक टाइम का भी गुजर बसर चल सकता था, अब तो दो दो बीवियां घर में बैठी है, कैसे गुजर बसर चलेगा? जल्दी से कोई काम बताइए वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे। आपने फरमाया जाओ तीसरी शादी कर लो। वो नौजवान गया, तीसरी शादी कर लिया। तीसरी शादी करने के बाद 8 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के मिला, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ। आपने पूछा नौजवान क्या हाल है? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहा अरे घर का हाल बताओ, किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है? कहा अल्लाह का शुक्र है, ये जो तीसरी बीबी आई है ये खजूर के पत्तों की जो है चटाई बनाना जानती है और ये काम घर में शुरू कर रही हो, यानी 10 दिरहम का रोजाना काम करती है मेरी बीवी। 10 दिरहम का फायदा रोजाना मेरे घर में हो रहा है। और वो जो लास्ट में जो बीवी आई है, जो तीसरी बीवी है, वो अपने दोनों जो है मेरे दोनों बीवियों को सिखा दी है चटाई बनाना, चटाई बुनना। इसी तरीके से तीनों बीवियां घर में चटाई बना रही हैं। 30 दिरहम रोजाना आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम क्या करते हो घर में? कहा मैं बैठा रहता हूँ, खाली घूमता हूँ बस। शादी के फवायद ये हैं। आज का नौजवान सोचता है कि जब पैर पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, अपनी जवानी को ख़त्म कर रहा है और सोचता है कि जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। शादी करो नौजवानों, इसमें बरकत है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और शादी कैसे करो? शादी सादी बनाओ, सादगी अख्तियार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतरीन अफजलुन निकाह, सबसे बेहतर शादी वही है कि जिसमें खर्च कम हो, बराती ना लेके जा रहा हो, 2-4 आदमी जाए निकाह पढ़ा के चले जाए। मैं आपको एक हदीस, आपको बुरा भी लगेगा, मुसनद अहमद की हदीस है, ये बरातियों के ताल्लुक से है, शायद आप लोगों को बुरा भी लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जानते हो मैं तुम्हें डाकू की एक शक्ल बताता हूँ, डाकुओं की एक शक्ल बताता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन सी शक्ल है? कहा जो लड़की वालों के घर बराती की शक्ल में जाते हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं। ये मुसनद अहमद की हदीस है। वो डाकू चोर बन के जाते हैं, डाकू बन के निकल जाते हैं। कहीं भी किसी भी किताब के अंदर ये सबूत नहीं लिखा है कि लड़की के घर खाया जाए, कहीं भी नहीं लिखा है। अगर खिलाना है तो लड़की वाले के घर जाके खाइए, वलीमे की दावत, जो नबी से साबित है। नबी के मोहतरम साथी जो हुआ करते थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जब शादी हो जाया करती थी नबी को पता नहीं चलता था, कितनी सादगी के साथ शादी किया करते थे। न आफर सिस्टम, न बफर सिस्टम, न आराती, न बराती, किसी का कोई पता नहीं था। नबी के एकदम खास जानशीन में से अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो नबी के खास दोस्तों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर पीलापन, जर्दी का रंग देखा। कहा कि अल्लाह के नबी ने पूछा अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहा अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। बतलाइए, सहाबा शादी कर रहे हैं, नबी को पता ही नहीं चलता है। आज हम हैं, जब तक कि पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार, पूरे दोस्त अहबाब को जब तक इकट्ठा नहीं कर लेंगे और सबको बराती हाँकते हुए नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम शादी को नहीं मानते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस समाज को सुधारने की कोशिश करो। अपने माशरे से जहेज, कैंसर जैसी नासूर बुराई को अपने समाज से ख़त्म करने की ज़रूरत है। फ़ानी बदायूनी, मैं वाक़या बयान करके ख़त्म करना चाहता हूँ। फ़ानी बदायूनी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, इंडिया के बहुत बड़े शायर गुजरे थे। इनके पास एक ही बेटी थी और जब ये अपनी बेटी को रुखसत करने लगे तो अपने दामाद को खुश करने के लिए इतना सारा सामान दे दिया, फिर भी दामाद को कम पड़ गया। फ़ानी साहब जिस घर में रहते थे उस घर को भी बेच डाला अपने दामाद को खुश करने के लिए, ताकि मेरा दामाद खुश रहे, मेरी बेटी घर में जाकर के खुश रहे। बेटी क्या करे, मजबूर होती है, घर की मजबूर होती है। फ़ानी साहब अपने दामाद को खुश करने के लिए घर को भी बेच डाला, सारी ज़मीन, सारी प्रॉपर्टी बेच डाला अपनी बेटी को खुश करने के लिए, अपने दामाद को खुश करने के लिए। घर नहीं है उनके पास, बेटी ससुराल जाती है, उसी रात में जालिम ससुराल वालों ने उनकी बेटी को कत्ल कर देते हैं जहेज की कमी की वजह से। बतलाइए, गौर कीजिए, ये इंडिया का वाक़या है। फ़ानी बदायूनी बहुत बड़े शायर गुजरे थे जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली, फिर भी दामाद को कम पड़ा, जहेज कम पड़ा, उसी रात में उनकी बेटी को कत्ल कर देता, अपनी बीवी को मार डालता है। फ़ानी साहब सुबह सवेरे अपनी बेटी के घर जाते हैं और एक शेर पढ़ते हैं,
اب آیا یار آرام جا اس نامرادی پر، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی پر، ہم نے سب کچھ دے دیا، پورا گھر لٹا دیا، پوری زمین بیچ ڈالی، اے کاش 2 گز کا کپڑا بھی دے دیا ہوتا تاکہ ظالم سسرال والوں کے گھر کی طرف سے نہ ملتا۔ اندازہ لگائیے ہم اور آپ کتنا ستائیں گے، ان غریب بچوں کے اوپر کتنا ظلم کریں گے، ان کے والدین کو کتنا ہم ستائیں گے۔ آج اخباروں میں روزانہ ایک خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ لڑکی زہر کھا کے مر جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر پٹری پر ریلیٹ کر کے اپنی جان کو مار ڈالتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ ہیں۔ جب تک کہ اپنے سماج اور معاشرے سے